وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ پاکستان میں سیاسی فاشزم حد سے بڑھ چکا ہے۔ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ جو کام کل آدم ٹی ٹی پی نہیں کر سکتی تھی وہ کام 9 مئی کو ایک سیاسی جماعت نے کیا۔ What is in front of me is only Pakistan. تو مجھے my head hung in shame because it was a part of political fraternity what happened on 9th May. تو دنیا کو ہمارا کیا چہرہ نظر آیا، ہم نے اپنی ملٹری انسٹالیشنز پہ حملے کیے، جو چیز ٹی ٹی پی نہیں کر سکی وہ پولیٹیکل پارٹی نے کر دی، اور میں تو آنیسٹلی ایسے لوگوں کو پولیٹیکل پارٹی کہنا بھی نہیں چاہتی بالکل۔ ناؤ آئی ٹاک ایز اے پاکستانی، not as a political leader or as a political person. ہسٹری میں وہ کبھی مناظر ہم نے نہیں دیکھے جو ہمیں 9th مئی کو دیکھنے کو ملے۔ تو یہ بھی جو ایک پولیٹیکل فیشزم ہے جس نے اب it has reached epic proportions. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں پاسکو، سندھ اور بلوچستان کے لیے گندم خریداری کے اہداف کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس بارے میں مزید جانیں گے نمائندہ جیو نیوز اشرف ملخم نے میں جوائن کیا ہے۔ اشرف بتائیے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی اجلاس کل ہوا تھا، کل وزارت خزانہ کی طرف سے کوئی آفیشیلی اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا، آج بھی اس کا اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا، جب پہلی دفعہ ہوا کہ اسی کے اجلاس کے بعد اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا، اس لیے سارا کچھ ہم نے جو انفارمیشن ملی ہے انفارمیشن وہ ذرائع سے ملی ہے۔ اس کے مطابق 274 ارب روپے کی منظوری دی گئی ہے گندم کی خریداری جاری کرنے کے لیے، جو 274 ارب روپے جاری کیے جائیں گے۔ یہ رقم بینکوں سے گندم کی خریداری کے لیے اسٹاک کے طور پر رکھی جنرلی گندم وہ لی جائے گی۔ سندھ اور بلوچستان پاسکو کے لیے 24,50,000 ٹن گندم کی خریداری کرے گا۔ پاسکو علیحدہ سے 14 لاکھ ٹن گندم خریدے گا، اسٹور کرے گا۔ پاسکو لے گندم کی خریداری کے لیے 169 ارب روپے کی کیش کی منظوری دی گئی ہے جو پاسکو کو جاری کی جائیں گے۔ صرف سندھ 100 اور 10 لاکھ ٹن گندم خریدے گا، جبکہ بلوچستان 5.7 ارب سے 50,000 ٹن گندم خریداری کرے گا۔ جی بہت شکریہ اشرف ملخم، ڈیٹیلز دی آپ نے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں زہر خورانی سے 4 بچے جاں بحق ہو گئے ہیں جبکہ بچوں کی ماں اور ایک بیٹی کی حالت تشویشناک ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والے بچوں میں 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا شامل ہے۔ متوفی بچوں کی والدہ نے شوہر پر چائے میں زہر ملانے کا شبہ ظاہر کیا ہے۔ اسپتال میں بیان دیتے ہوئے خاتون نے کہا کہ شوہر سے بیٹی کی شادی پر جھگڑا ہوا تھا، نمبردار کے گھر سے واپسی پر چائے پی تو حالت بگڑ گئی۔ پانی چائے پکائی میری کڑی نے، ثانیہ نے صبح اٹھ کے میں بھی پیالی پیتی ہے، کڑی نے بھی پیتی ہے۔ چاہ پین تو ادھا گھنٹہ مگروں اینو میں کیا کڑی کا رشتہ کیتا دن کہندے ڈیٹ تے لے لو، کہندا نہیں جو مرضی ہو جائے میں انہاں دا ویاہ نہیں کرنا، یا میں تینوں مار دینا یا تو طلاق لے کے نا ماپیا دے چل جا۔ ادھا گھنٹہ ہو گیا سی میری چاہ پیتی مینوں کچھ نہیں ہویا۔ اسی گھر آن کے جی چاہ بچی سی نا 4 کے کپ بھوک لگی سی روٹی نہیں سی ہجے پکائی، میں کڑی نے کہا چل پتا آپ چاہ پی لی جی پیالی ہے کام کرتے ہیں۔ انہیں کہتے مگروں کوئی شے پائی چاہ دے وچ اسی ہے نہیں سی، کیوں مگروں ہویا کام مگر پہلو ہوندا مینوں پہلو بھی سانوں الٹیاں آنیاں سی، ادھا گھنٹہ سان نمبر کوئی لگ گیا سی بیٹھیاں نوں، جدوں آن کے چاہ پیتی ہے نا سی ادوں ساڈے دلاں نوں کچھ ہویا وا پہلو سی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ سے کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ حکومت میں آزادی صحافت اور آزادی اظہار رائے پر پابندی کی سوچ بھی نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا کے لیے کچھ قواعد و ضوابط کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے اخبارات کے اشتہارات کے نرخ میں 35% اضافے کے فیصلے کا نوٹیفیکیشن جلد جاری کر دیا جائے گا۔ عطا تارڑ نے کہا کہ اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا کی اہمیت سمجھتے ہیں اور اسے مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ معیشت کی بحالی بشمول FBR کے ڈیجیٹلائزیشن اور غیر دستاویز معیشت کا خاتمہ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری لاڑکانہ میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ آپ کے MNA انشاءاللہ تعالی جیسے آپ نے پچھلے 5 سال میں محنت کیا اس کو آپ نے اب آگے جا کے
मज़ीद मेहनत करना है और मज़ीद परफॉर्म करना है। पाकिस्तान एक बहुत मुश्किल में है इस वक्त, मुआशी सूरत हाल देखे या सिक्योरिटी सूरत हाल देखे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अवाम का मैंडेट का एहतराम करते हुए ये फ़ैसला किया कि पाकिस्तान के अवाम ने किसी एक जमात को वो वाज़े मैंडेट, वो वाज़े अक्सरियत नहीं दी कि वो अकेला हुकूमत संभाले। तो ये पाकिस्तान के अवाम का एक पैगाम है हम सब सियासतदानों के लिए कि आपस में इख्तलाफ और झगड़ा करने के बजाय पाकिस्तान के अवाम ये अपने वोट के ज़रिए एक पैगाम भेज रहे हैं कि वो चाहते हैं कि हम आपस में मिल बैठ के उनका मसाइल का हल निकालें और पाकिस्तान को एक मॉडर्न तरीन जदीद ममालिक बनाएं, जो जहाँ मुआशी तरक्की हो, जहाँ के अवाम को रोज़गार मिले, गुरबत से हम पाकिस्तान के अवाम को निकालें। और इस मुआशी तरक्की के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ दे रही है, और हमारा उम्मीद है कि जो पाकिस्तान के अवाम के तमाम मसाइल है वो हमारे मशवरे के साथ इंशाअल्लाह ताला उनका हल करेंगे। कोई और आके तो आपका ये मसले नहीं हल करेंगे, हमने ख़ुद ये मसले हल करने हैं। और मुझे बहुत अफसोस होता है कि जब मैं पार्लियामान में जाता हूँ और देखता हूँ कि किस तरीके से जो सियासतदान है वो जो अपने ज़ाती इश्यूज़ है, जो ज़ाती अना है, जो ज़ाती मसले हैं, उन पे ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। मैं ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के पार्लियामान में हमारे अपोजिशन के साथी हैं उनको भी अपना ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि अगर उनको वोट पड़ा है तो पाकिस्तान के अवाम ने इसलिए अपोजिशन को वोट नहीं दी कि वो आके सिर्फ गालियाँ दे, सिर्फ शोर शराबा करे। अगर पाकिस्तान के अवाम ने उनको वोट दिया वो इसलिए दिए ताकि वो अपना ज़िम्मेदारी के साथ अपना किरदार अदा करें। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो मुंतखब नुमाइंदे नेशनल असम्बली में हैं वो अपना किरदार अदा करते हुए हुकूमत से तावन करेंगे ताकि हम एक नेशनल चार्टर ऑफ रेकन्सिलिएशन पे काम कर सकते हैं, ताकि हम एक नेशनल चार्टर ऑफ द इकोनॉमी पे काम कर सकते हैं, और ताकि हम जुडिशल रिफॉर्म्स पे काम करके आम आदमी को इंसाफ दिला सकें। अगर हम इन इश्यूज़ पे मिल के काम करते हैं तो पाकिस्तान के जो ज़्यादातर मसले हैं, अगर हम अपने आपस में सियासी रेकन्सिलिएशन हो जाएं और इस रेकन्सिलिएशन नहीं तो एक कोड ऑफ कंडक्ट हो जाए, और जो सियासतदान हैं वो सियासत के दायरे में रह के सियासत करें और इदारे अपने दायरे में रह के अपने काम करें, तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, पाकिस्तान का मुआशी तरक्की हो सकता है। और इसके लिए इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। आप सबको मैं इस बात की भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपकी मेहनत की वजह से, आपकी जिद्दोजहद की वजह से हमने एक बार फिर सदर ज़रदारी को सदर पाकिस्तान मुंतखब करवाया है, और पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर तारीख़ रकम की कि सदर ज़रदारी को पाकिस्तान की तारीख़ में वो पहला सिविलियन सदर है जो दूसरी बार ये सदर का ओहदा, ये वफाक का ओहदा संभाल रहा है। और एक बार फिर ये साबित हो रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो इंशाअल्लाह ताला हम साबित करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही इस वफाक की जंजीर है। आपका इसके साथ साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर कारकुन के लिए एक तारीख़ी कामयाबी हमने अदालत के थ्रू हासिल किया है, वो ये कि सदर ज़रदारी का जो अदालती रेफरेंस था जुडिशल मर्डर में कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो अदालती कत्ल हुआ था, उसमें अदालत ने ये बात माना है कि कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ नहीं मिला, फेयर ट्रायल नहीं मिला। और जबकि हम डिटेल्ड ऑर्डर के इंतज़ार में हैं, हम इस कामयाबी को हम सदर ज़रदारी का शुक्रगुज़ार है जिसने जब वो पहले सदर था ये सदारती रेफरेंस बेचा, और हर जियाला का एक ख्वाब था कि अपने कायद को हम अपनी ज़िंदगी में
इंसाफ मिलते हुए देखे। उस जद्दोजहद में हमने एक तारीखी कामयाबी हासिल किया है, मगर हमारा जद्दोजहद जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब हम 14 अप्रैल को गरी खुदा बख्श में कायदे अवाम का बरसी मनाएंगे, और ये हम चाहेंगे आप सब इस जलसा के लिए मेहनत करें, और हम एक इंशाअल्लाह ताला कोशिश ये होगा कि हम एक तारीखी जलसा करें जहाँ हम कायदे अवाम को खराज तहसीन, खराज अकीदत पेश करें, और इस कामयाबी पे, इस तारीखी कामयाबी पे हम चारों सूबों के जियाले इंशाअल्लाह ताला आएंगे, और हम साथ मिलके इस बात की खुशी मनाएंगे कि हमने जो कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अदालती कत्ल था, उसकी जद्दोजहद में हमने इतना बड़ा कामयाबी हासिल किया है। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। अब इफ्तारी होने वाला है, इंशाअल्लाह ताला हम साथ मिलके अपना रोज़ा तोड़ेंगे। जी भुट्टो। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर से काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ पेपर्स एडिटर्स के वफ़द ने मुलाकात की है। इस मौके पर वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हुकूमत में आज़ादी सहाफ़त और इज़हार राय की आज़ादी पर पाबंदी की सोच नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के लिए कुछ कवायद व ज़वाबित की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अखबारात के इश्तिहारात के नर्ख में 35% इजाफे के फैसले का नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। अता तारर ने कहा कि अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अहमियत समझते हैं और इसे मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं। मईशत की बहाली बशमूल FBR की डिजिटलाइजेशन और गैर दस्तावेज़ मईशत का खात्मा हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में काबीना का कोई बाज़ाब्ता इजलास नहीं हुआ है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि वज़ीर आला और काबीना अरकान इफ्तार पार्टी में कोर हेडक्वार्टर गए थे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक ने ज्वाइन किया है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल, मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि कोर कमांडर हाउस में खैबर पख्तूनख्वा की काबीना का कोई बाज़ाब्ता इजलास जो है वो नहीं हुआ, जबकि 11 कोर में काबीना मेंबरान को अफ्तार की दावत दी गई, जिसे इस्लामी रिवायात के मुताबिक कबूल किया गया। और अफ्तारी के बाद 11 कोर में काबीना मेंबरान को सुबह में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि 11 कोर में सिक्योरिटी मामला के हवाले से स्पेशलाइज्ड ब्रीफिंग रूम जो है वो मुख्तस है, इसलिए काबीना मेंबरान जो है वो वहाँ पर गए। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी सूरत हाल काबू करना हुकूमत और इदारों की मुश्तरका जिम्मेदारी है, और खैबर पख्तूनख्वा में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से निपटने के लिए फौज से फाल राब्तों और ताउन पर यकीन रखते हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि अफगानिस्तान के साथ हमारा तवील बॉर्डर है, जहाँ सिक्योरिटी इदारों पर भारी जिम्मेदारियां आयद होती है। और बैरिस्टर साहब ने यह भी कहा कि सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग के बाद सवालात और जवाबात का सेशन भी हुआ, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने खिताब भी किया। और अपने खिताब में वज़ीर आला ने खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और हुकूमती इक़दाम पर बात की, और उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने कोर कमांडर की अफ्तार पर जो है की दावत पर अफ्तार के लिए गए थे और सिक्योरिटी सूरत हाल पर जो है वो वहाँ पर ब्रीफिंग लिए। बैरिस्टर साहब ने कहा कि अवाम और अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अगर हमने अपने तो ये बहुत शुक्रिया अबू बकर सिद्दीक।